ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو کافر ہے اسے امت دعوت کہتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ہے تو دونوں ہی امت۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ چکن جو بھون بھون کر کے کھاتے ہو، یہ ڈش ہے، یہ پیزا ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، یہ کھانا ہے، کیا امت موسیٰ نے کبھی اس کا تصور کیا تھا؟ کیا امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں نے کبھی ہوائی جہاز میں پرواز کرنے کا تصور کیا تھا؟ کیا کبھی ان کے دماغ میں ٹرینوں کا تصور آیا تھا؟ خدا نے کتنی فراوانی دی تھی محبوب کے صدقے کہ تمہارے سفر کو جو مہینوں کا تھا اللہ نے منٹوں میں سمیٹ دیا۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم سے کھایا نہ گیا، تم سے اچھی سے رہا نہ گیا، اللہ دیتا گیا، تم نافرمانی کرتے گئے، اللہ دیتا گیا، تم اس کے قانون کو توڑتے گئے۔ جو کافر کہلاتے ہیں ان سے تو کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، ان کے پاس محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں، ان کے پاس غوث و خواجہ کی نسبت نہیں۔ لیکن تم سے کہتا ہوں وہ نعمتیں دیتا گیا، اس کی نعمت کا اچھا استعمال کرنے کی بجائے ہم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے جوؤں کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے لوگوں کا دل دکھایا، ہم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا، ہم نے عورتوں پہ بدنظری کی۔ مجھے بتاؤ کیا تم میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور قوموں کو ہلاک کرے گا، تمہیں بچائے گا؟ یہ وعدہ تو وہ کر چکا ہے، حبیب تیری امت پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن یہ وعدہ تو اس نے نہیں کیا ہے کہ انفرادی عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ گناہ کی وجہ سے یہ قوم امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب اس قوم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور آ گیا وہ عذاب جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میری امت علی الاعلان زنا کرے گی تو اللہ اس قوم کو زلزلے کے جھٹکے دے گا۔ 2015 میں کتنے زلزلے دیکھے، یہاں زلزلہ، یہاں زلزلہ، یہاں زلزلہ۔ جب زنا عام ہوگا زمین زلزلوں سے تھرا جائے گی، جس وقت سود عام ہوگا بارش کا نزول بند ہو جائے گا، باران رحمت روک دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مارکیٹ سے سب کچھ نہیں مل سکتا، ہمارا ایمان ہے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، ہم مومن ہیں۔ اور یہ 2016 کی جو پیشن گوئی ہے یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے اگر آج یہ امت گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ مندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آج یہ امت گناہ سے توبہ کر لے۔ گناہ کس طرح انسان کو ہلاک کرتے ہیں، کس طرح ہلاک کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مقدسی کی طرف چلتے ہیں۔ میں قرآن سے ٹچ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شخص ہے جس کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہے، اس طریقے سے اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے کہ اس شخص کا روحانی مقام اتنا بلند ہے، میرے اللہ نے اس کو اتنی بلندی دی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر جب نظر اٹھاتا ہے تو عرش کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا نام بلعم ابن باورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اللہ 12,000 اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر 12,000، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عابد و زاہد ہے۔ یہ بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا، عبادت، ریاضت، اور اس کو اللہ نے اسم اعظم تک سکھا دیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ عرش تک دیکھ لیتا ہوگا تو اس پر انعامات کی بارش کتنی ہوگی۔ اس کے 12,000 شاگرد تھے، لوگ اس کی غلامی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم
हुक्म फरमाया, मूसा जाओ और कौम जब्बारीन पर हमला करो और उनको उनके गुनाह की सजा चखा दो। जब कौम जब्बारीन पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अल्लाह अकबर हजारों नौजवानों को लेकर के निकले और आप आकर के एक जगह पर ठहर गए, तो जब्बारीन कौम के सरदार बलअम के पास आकर के कहते हैं, एक काम करो, आप जनाब मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ कर दो माज़अल्लाह, ताकि वो हलाक और बर्बाद हो जाए। उसने कहा अल्लाह अकबर, वो कांप गया, लरस गया, मैं एक नबी के लिए और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करूंगा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकेगा। नबी के लिए बद्दुआ नहीं की जा सकती, मोमिनीन के लिए बद्दुआ नहीं की जा सकती। जब वो कौम को उसने जवाब दिया तो कौम के सरदारों ने काम किया, बहुत सारे तोहफे तहफ इकट्ठा किए, मालो दौलत इकट्ठा किया और सब कुछ इकट्ठा करने के बाद उसको दौलत से लाद दिया और उसके बाद कहा, क्या अब भी आप हमारा काम नहीं करेंगे? क्या अब भी आप कौम मूसा के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे? उसने कहा ठीक है, मैं इस्तिखारा करता हूं। उसने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में जवाब ना का आया, लेकिन जब ना का जवाब इस्तिखारे में आया तो उस शख्स ने फिर भी जो है अपनी गधी पर बैठा और चलने लगा। गधी मुड़ जाती थी, वो अपना चेहरा फेर लेती थी, वो जाने के लिए तैयार न थी, वो गधी को मारने लगा। जब गधी न चली तो गधी को अल्लाह ने जबान अता की। गधी उसको मुड़ करके कहती है, बलअम मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो एक नबी की तौहीन के लिए जा रहा है, तू एक नबी की बद्दुआ के लिए जा रहा है, मुझे मेरे सामने फरिश्ता है जो मुझे रोक लेता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? उस पर भी वो न माना और वो उतर करके गया, पहाड़ पर खड़ा हुआ। उसने जनाब मूसा की फौज को देखा और उसके बाद हाथ उठा दिए और उसने जनाब मूसा के लिए बद्दुआ करना शुरू किया। लेकिन जैसे जनाब मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए वो बद्दुआ करता तो जनाब मूसा के नाम की बजाय उसका अपना नाम उसकी जबान पे बतौर बद्दुआ आता, और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करता तो उसकी अपनी कौम का नाम आता। कौम कहती तू क्या कर रहा है? तू अपने लिए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा है, जबकि हमने तो तुझे मूसा और उसकी कौम के लिए बद्दुआ करने के लिए कहा। वो शख्स कहता है जबान पे मेरा काबू और कंट्रोल नहीं। लोगों सुनो, अब तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। उसकी जबान उसके सीने पे लटक गई, उससे रूहानियत छीन ली गई, उससे ताकत और कुव्वत छीन ली गई और उसके बाद वो जलील कर दिया गया। वो रोने लगा, कहा दुनिया और आखिरत तो तबाह हुई। कौम ने कहा छोड़, तेरा जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये बता कौम मूसा से निपटे कैसे? बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। उसने यूं कहा कि सुनो सुनो, बात ये है कि जनाबे मूसा की कौम को तुम शिकस्त दे सकते हो, वो हार जाएगी और जनाबे मूसा वापस लौट जाएंगे। कहा वो कैसे? कहा तुम अपनी कौम की खूबसूरत लड़कियों को बना संवार करके और सिंगार करा करके तुम जो है वो नीम उरिया हालत में, यानी आधे आधे कपड़े पहनाकर मूसा की कौम के दरमियान छोड़ दो। कौम की हजारों लड़कियों को जमा किया गया और जब उनको छोड़ दिया गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार जवान था। एक खूबसूरत लड़की को वो गोद में उठा करके लाया और लाने के बाद उसने हजरत मूसा से फतवा पूछा, बताएं ये लड़की मेरे साथ हलाल है या नहीं है, आप मेरे साथ इसका निकाह कर दें। हजरत मूसा ने कहा हम जिहाद के लिए आए हैं, हम निकाह की महफिलें मुनक्किद करने नहीं आए हैं। ये लड़की तुझ पे हराम है और मैं इसके साथ तेरा निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैं अल्लाह के हुक्म पे अमल न कर लूं। उसने लड़की को उठाकर अपने खेमे में ले गया और ले जाकर वो जिना में मसरूफ हो गया। एक बंदे ने जिना किया, उसके जिना की नहूसत ये हुई कि वो एक सेकंड के अंदर ऐसी हवा चली कि जनाबे मूसा की कौम पर ताउन की वबा फैल गई, प्लेग की वबा फैल गई और एक घंटे के अंदर अंदर 70,000 जवान मर गए। 70,000 लाशें किसे कहते हैं? आप गौर तो करें, चंद लाशों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। 70,000 जवानों की लाशों को जब देखा कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ छोड़कर भाग गए। हजरत मूसा गमगीन हो गए और आप वापस पलट गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के अंदर नबी जाहिरी जिंदगी में मौजूद हो और नबी
उस कौम की क़यादत कर रहा हो, अगर कौम का एक बंदा जिना करता है तो एक जिना की नहुसत की वजह से 70,000 जवान मरते हैं। ये शाम में उठते हुए जनाजे, ये यमन के अंदर अल्लाह अकबर सड़ती हुई लाशें, ये बैतुल मुकद्दस के अंदर बेगौरो कफन पड़े हुए मासूम लाशें पुकार पुकार कर कह रहे हैं ये यूं ही नहीं है। वो लाजों का जिना कौम को इस मकाम पर पहुंचाया है। ये भूख से मरते हुए अफ्रीका के सहराओं के अंदर तड़पती हुई इंसानियत हमें बता रही है ये सूद की नहुसत का नतीजा है। और मुसलमानों सुन लो, अगर हिंदुस्तान में तुम सुकून की नींद सो रहे हो, तुम इत्मीनान की नींद सो रहे हो, तो ये न समझना कि कुदरत ने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली है। कुदरत की निगाह से कोई बच नहीं सकता। रात की तारीकियों के अंदर जुर्म करोगे या दिन के उजालों में जुर्म करोगे, दरियाओं के किनारे जाकर जुर्म करोगे या पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके जुर्म करोगे, अगर तुम हवाई जहाजों में जाके जुर्म करोगे, तुम सबसे अपने गुनाहों को छुपा सकते हो, खुदा से तुम छुप नहीं सकते, अल्लाह की निगाहों से छुप नहीं सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अपनी दौलत पे न इतराना, अपनी जवानी पे नाश करके अल्लाह को नाराज न करना। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, तुम्हें भी तबाह कर देंगे। आज के सुन्नी इज्तिमा में मुस्तफा करीम का गुलाम उनकी नालैन की खैरात लेकर आलमी सतह पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी और आप सबको भी ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ आकर के सच्ची तौबा कर लो। गुनाह हलाक कर देते हैं, गुनाह तबाह कर देते हैं। और सुनो, और बहुत गौर और दिल के कानों से सुनो, अगर गुनाह से दामन बचाया ना, पूरी दुनिया में मंदी होगी, तुम्हारी दुकान पे मंदी नहीं होगी। अगर दामन को गुनाह से बचाया ना, पूरी दुनिया के सर पे तलवार लटकेगी, तुम पर रहमतों का नज़ूल होगा। आप, ये मेरी अकीदत का गुलू नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो गुनाह से बचेगा उसे अल्लाह अमान देगा, और अल्लाह जिसे अमान दे दे उसके बचने के लिए मकड़ी का जाला भी काफी होता है, और अल्लाह जिसे अमान न दे उसकी हिफाजत किले भी नहीं कर सकते। क्या तुमने नहीं देखा इन्नल्लाह माना कहने वाला रसूल सिद्दीक अकबर को क्यों तस्कीन दे रहे हैं? जब अबू बकर कहते हैं आका इनके कदम मैं देख रहा हूं, ये हमें देख लेंगे तो क्या होगा? सरकार फरमाते ला तहज़न, गम न कर, गम न कर, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह हमारे साथ है। और जब अल्लाह साथ है, एक मकड़ी का जाला, कबूतर का घोंसला मेरे सरकार अलैहि सलाम की हिफाजत का जरिया बन गए।